हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फेलोज। आज दूसरा दिन है हमारे वीक 3 का। दिस इज डे 12 ऑफ स्टार्टअप समर स्कूल। सो वी आर रियली एक्साइटेड कि जो एक रोलर कोस्टर जर्नी हमने 4 वीक का आपके लिए डिजाइन किया, वी आर इन टू वीक 3। और आज का ये जो पूरा वीक है, दिस इज अबाउट स्टार्टअप एंड ब्रांडिंग। कैसे आपने अपना जो एक प्रॉब्लम ढूंढा उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन बनाया, अब उसको एक स्टार्टअप बनाना है, आपने एक स्टार्टअप बिजनेस बनाना है। एंड इट्स योर टाइम टू हिट द मार्केट। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेजर उबैद बिन ज़िकिया वाइस चांसलर लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं। एंड वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग गेस्ट टुडे, मिस्टर उमर गनी. Umar Ghani is an investment banker. He had a background. He served at Wall Street. उसके बाद फिर एक successful investment banking career के बाद he had a successful career with consulting. Include को regional इस region में head किया पूरे. Then Grant Thornton के साथ partner है. इसके अलावा there are a number of amazing things that Umar is doing. He is consulting HEC on different investment projects. He has launched an amazing initiative for investment platform जिसके बारे में उमर भाई खुद डिटेल से बात करेंगे. So उमर भाई, let's start the journey. Assalamu alaikum, Imran. Thank you for giving me this opportunity and for your kind words. I'll start with my introduction and give a brief of our platform and how this platform can help your students connect with sources of capital and investors to support their ventures. And then we'll get down to the crux of the presentation. Today's topic I've chosen, I've taken a case study and I would like to highlight that case study. But before that case study, I'd also want to showcase an investment readiness program that I've designed for kids who are coming out of incubators and looking to connect with sources of capital. So just with this introduction, let's start. The portal that we have established is called the Pakistan National Investor Portal. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? Yes, please share screen पे जाएं आप. जी, can you see my screen? Yes. So the portal that जी आप बोले. पूरी स्क्रीन शेयर नहीं करें उमर भाई. उसमें आप स्क्रीन शेयर के अंदर जाके एंड यू पिक एप्लीकेशन विंडो और उसमें से वो पर्टिकुलर विंडो शेयर करें विच यू वांट टू शेयर. चलें जी, मैं फिर अपनी I wanted to show you I'll show you a quick video of our investment readiness program. So this program is designed, मैं इसकी program के आपको background बता दूं थोड़ी सी. This program essentially, when I was heading Include as a South Asia regional head, we were engaged by the Dutch development sector, Dutch government. In fact, जिस तरह USAID है US की, उस तरह Dutch government की एक इदारा है FMO. उन्होंने हमें engage किया था to run this program in around 12 countries, which included some countries in Africa and Latin America. So we designed this program. It's a 7-course 28-module program. इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि आपने ये ट्रेनिंग जिन बच्चों को दी है, उन बच्चों ने कितने पैसे रेज किए हैं. ये दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम देखते हैं कि हमने कितने टॉपिक्स पढ़ा दिए. तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है जी. इसको हमने 2000 यहाँ से लेकर 2015 तक रन किया प्रोग्राम को, और ये 12 कंट्रीज में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया. कोई 14,000 से ज्यादा बच्चों को हमने ट्रेन किया, जिसमें से रफली 800 बच्चों को हमने ग्रेजुएट किया. बिकॉज द ग्रेजुएशन रेट फॉर दिस प्रोग्राम इज रियली स्ट्रिक्ट. Not every kid who graduates from this program is what we call investment ready. But those who are investment ready, we can assure you that they are highly successful in raising capital. तो 820 बच्चों में से कोई रफली 215 बच्चों ने 216 बच्चों ने पैसे रेज किए. दे वर इन्वेस्टमेंट मैच मेक्स and roughly 16.8 million dollars were raised by those companies all in all. These were SMEs, these were not fast growth startups, but regardless, this is public information. And so since I returned to Pakistan in 2012, I have been working in developing a program, customizing a program for Pakistan, जिसमें हम लोकल केस स्टडीज को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें और लोकल जो हमारे डिमांड सप्लाई गैप्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करें. ये हमारा एक क्विक प्रोग्राम था जिसका मैंने आपको एक अभी ब्रीफ वीडियो दिखाई है. एंड वीडियो आप काइंडली उमर भाई मेरे से शेयर कर दें. आई कैन प्ले इट.
You can't see the video? Yes, can't see. आप Oh, वीडियो you मुझे can't. व्हाट्सएप मैं आपको खैर नहीं, चले वीडियो तो मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा। आई डिडंट रियलाइज यू कुड सी। अच्छा, इसमें द ब्यूटी ऑफ दिस, मैं अब वापस स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। आई डिडंट रियलाइज यू कुड सी द वीडियो है। जी। So on this platform, what we've done is we've created some tools. So we've created 4 broad tools for startups. क्योंकि हमें पता है बहुत से बच्चे आते हैं, आइडियाज अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेते हैं, बट जो वो उनको इन्वेस्टर पिच डेक अपना डेवलप करना होता है उसमें उनको टाइम लगता है और काफी स्ट्रगल होती है। और यूजुअली जब वो डेवलप भी कर लेते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं डेवलप किया जाता और इन्वेस्टर की लेंस से नहीं डेवलप किया जाता। तो ये जो 4 टूल्स हैं, इसमें हमारा एक बिजनेस प्लान बिल्डर है, इसमें हमारा एक कंपनी वैल्यूएशन कैलकुलेटर है, इसमें हमारा एक टर्म शीट बिल्डर है, इसमें हमारा एक कैपिटलाइजेशन टेबल बिल्डर है। और सिंपली ये सिंपल स्टेप्स हैं और बच्चे सिंपली इस टूल्स को यूज करके अपने बिजनेस प्लान्स को इन्वेस्टर की लेंस से, जिस तरह आपने एक बिजनेस प्लान बनाना है उसी तरह एक बिजनेस प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी कंपनी वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कंप्लीट कर सकते हैं, अपने लीगल अग्रीमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं वेरी इजीली। एंड ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है और इस प्लेटफॉर्म को SECP ने हमें लाइसेंस भी दे दिया है टू लॉन्च इस पाकिस्तान फर्स्ट क्राउड फंडिंग पोर्टल। So, in the first phase, what we want to do is we want to run a nationwide campaign where we want to invite everyone to go through this program or simply, use our templates. इसमें हर किस्म का template हमने available कर दिया students के लिए to create their investor pitch decks, जिसको हम फिर अपने प्लेटफॉर्म में शोकेस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम है, इसके 7 कोर्सेज और 28 मॉड्यूल्स हैं और मोर लेस हम ये बच्चों तक ये मुफ्त पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने HSE से और जितनी सोर्सेज ऑफ कैपिटल हम इकट्ठी कर सकते थे टू फंड दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फ्री फॉर स्टार्टअप्स, तो हमने वो कर लिया है और अगले कुछ 1-2 हफ्तों में हम इसको लॉन्च भी करने जा रहे हैं। So on that note, मैं अब थोड़ा सा पॉज करूंगा। I'll give you a quick introduction on myself and then we'll get down to the topic itself. मेरी बैकग्राउंड से, in fact, I come from an investment banking background, but I returned to Pakistan in 2012. मैं 21 साल की उम्र से लम्स में पढ़ा भी रहा हूँ। Initially, I was a professor of mathematics. I would come every summer and teach in LUMS. पर जब मैं वापस आया तो मुझे फिर डॉक्टर इरशाद हुसैन ने IBA में इन्वॉल्व कर लिया and I redesigned the MBA program at IBA and I also taught finance courses to the MBA faculty for about 2 years before actually going on my own. अपनी हमने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म शुरू की 2011 में साथ alongside teaching, which within 2 years became the largest investment advisory firm in Pakistan, and we ramped up the entire multinational segment. British American Tobacco, IBM, Glaxo, Sanofi, Lotte, Merck, Engro, these were all my clients. In 2 years, I won all these clients and I was managing retirement funds when I got approached by a company called Include. And when I heard what Include was doing, I'm not a development sector guy, but when I heard what Include was doing, what it had done globally, I put all the things I trained myself to be on pause and I moved to Islamabad. And since then, I've been in Islamabad. So a few words on Include is also very important because that kind of ties in with what I'm going to be talking today. Include's background, Include is a firm that started as a bank out of Chicago in the 80s, and इस पे Harvard case studies लिखी गई हैं। इन्होंने जो काम किया है lifting people out of poverty and creating employment entrepreneurship opportunities in the United States of America. So one of the big organizations that this company created is known as Grameen Bank. In the early 90s, we were able to raise funding from Ford Foundation and create Grameen Bank, which 14 years later won the Nobel Prize, and then Include went on a spree to create such many organizations around the world and also in Pakistan. अगर आप देखते हैं, the majority of the microfinance institutions, we are behind their creation, from NRSP to Kashaf. We were the majority shareholders, in fact, in Kashaf, to Khushhali. We privatized Khushhali from the government of Pakistan and we brought in our investors to Finca. And the list is long. So we've been behind most of these microfinance institutions that were created in Pakistan. And when I took over, initially as an advisory firm, we implemented several projects. And over the course of 7 years, when I was heading this organization, I completed about 27 national level assignments. This may almost every key economic sector of Pakistan I've mapped. So
Most of these assignments were done at the State Bank level or the World Bank level. So if you talk about agriculture sector, my first project, which when I took over this organization, was to map the agri value chains across Pakistan. I've also designed the Naya Housing State Bank का जो पूरा low income housing का program है. I'm the chief architect. तो सारा जो policy framework है, सारा मैंने design किया है. That was also one of my projects. But what I'm trying to get to you is that when I was doing these projects, I went to every district in this country and I collected household level data from almost every district and every province that you can think of. And in terms of the agriculture project that I did, I was able to map all the agri value chains in Pakistan end to end, from farm to fork. You know, when you talk about an agri value chain, you know, ये chain शुरू होती है जी input fertilizers, equipments, on farm activities हैं, post farm activities हैं, sorting, grading, packaging, logistics. और इस हर नोड पे, इस वैल्यू चेन के हर नोड पे देयर मैसिव डिमांड सप्लाई गैप्स, व्हिचएवर वैल्यू चेन यू लुक एट. खाली एग्रीकल्चर के हवाले से नहीं, आप एसएमईज में चले जाएं, आप हाउसिंग में चले जाएं, आप रिन्यूएबल एनर्जी में चले जाएं, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन. Matt Damon, who's a Hollywood actor, he hired me in 2016 to run the national assessment on water sanitation hygiene. तो उसमें भी हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया. आप जिस सेक्टर को उठा लेंगे, मैं आई कैन टेल यू दैट इतने ज्यादा एनॉर्मस डिमांड सप्लाई गैप्स मैंने दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं देखे. तो सवाल जो दिमाग में उठना शुरू हुआ जी कि ये जब इतने ज्यादा डिमांड सप्लाई गैप्स हैं आपके, और दूसरी साइड पे हमारा इतना बड़ा यूथ बल्ज है यूथ का, तो what is happening? Why are we not able to accelerate the markets? Why are we not able to accelerate our agri markets, renewable energy markets, housing markets, wash markets? This is, you know, entrepreneur के लिए तो ये this is a land of opportunity. अगर आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जहां मैंने 20 साल गुजारे before I returned to Pakistan, वहां पे तो बहुत ज्यादा competition है. ऑलरेडी सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा इनोवेट करना पड़ता है, और वहां पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और बड़ी बड़ी चीजों पे इस वक्त काम किया जा रहा है टू क्रिएट योर स्पेस इन दैट हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. बट व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान, यहाँ पे हमें इतनी इनोवेशन एंड आईसीटी एंड ऑल दीज थिंग्स विल प्ले अ मेजर रोल. बट पॉइंट ये कि यहाँ पे जब इतना बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है, तो आप बेसिक चीजों में ही बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. तो आज मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक बिजनेस मॉडल बताऊंगा जिसके थ्रू आप $1 बिलियन कंपनी बना सकते हैं. और मैं ये चाहता हूं कि ये नॉलेज खाली मेरे तक ना रहे. मैंने तो अपनी बिजनेस शुरू कर ली है इस एरिया में, और मैं प्रोडक्ट बना के बेच भी रहा हूँ, पैसे भी बना रहा हूँ. बट मैं साथ साथ अब एक नेशन वाइड इसी बिजनेस के अराउंड में एक प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहा हूँ नेफ्टेक के साथ, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये स्केल पर पहुंचाई जाए और वो भी इन चीजों से पैसा बनाए. क्योंकि लाइक वी सेड, पाई इज बिग इनफ एंड वी ऑल बेनिफिट इफ यू ऑल ट्राई टू शेयर आवर नॉलेज. एंड हजरत अली का कॉल है जी कि नॉलेज इज द ओनली रिसोर्स जो शेयर करने से कम नहीं होती, वो बढ़ती है. तो हमें ये अपना एक प्रिंसिपल रखना है कि यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचाएं और लोग भी उससे फायदा उठाएं. तो नाउ आई कम टू द टॉपिक दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे. प्रेजेंटेशन तो मेरे पास बहुत हैं, 7 कोर्स और 28 मॉड्यूल्स का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह कभी और किसी और मौके पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा. बट आज क्योंकि हमारे पास जी, और मैं काइंडली लिंक शेयर कर दें, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ताकि मैं लिंक शेयर कर दूं, पोस्ट कर दूं. जी, लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूं. ये PNIP का लिंक है, www.PNIP Pakistan National Investor Portal.com.pk. सो जी, ये आपको नजर आ रही है? कैन यू सी माय? मैंने कमेंट्स में पोस्ट भी कर दिया है उमर भाई. जी चलें जी. तो मैं आपसे सारी चीजें शेयर कर दूंगा. इमरान, या आप फिर आराम से शेयर कर लीजिएगा अपने ऑडियंस से. सो जो हमारा कोर्स का आउटलाइन है वो हमारे PNIP पे इन्वेस्टमेंट रेडीनेस के सेक्शन में यू कैन गो एंड सी ऑल द कोर्सेज, और हर कोर्स का सेशन डिटेल्ड सेशन प्लान मौजूद है कि उसमें हम क्या कवर करेंगे और क्या उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, और तो वो आप देख सकते हैं. बट एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक टुडे, मैंने जो आज केस स्टडी चूज की है वो है एपीकल्चर वैल्यू चेन, creating millions of jobs just in one value chain in Pakistan, which is the apiculture value chain. Apiculture value chain कहा जाता है जी हनी की जो वैल्यू चेन है उसको एपीकल्चर, जिस तरह फूलों की वैल्यू चेन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, वेजिटेबल्स की वैल्यू चेन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, इसी तरह हनी की वैल्यू चेन को एपीकल्चर कहा जाता है.
तो एपीकल्चर वैल्यू चेन के बारे में आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा, और जो मैंने बिजनेस मॉडल इनोवेशन के थ्रू अपनी एक कंपनी शुरू की और जो बाकी लोग भी जिसमें हिस्सा ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक्स, आई विल स्टार्ट विद सम फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन पाकिस्तान। हनी वैल्यू चेन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त एक हनी की रेनेसांस और एक रेवोल्यूशन आई हुई है, क्योंकि हनी की एक बड़ी इंट्रिकेट रिलेशनशिप है क्लाइमेट चेंज के साथ। और जहां पे आप बीज देखते हैं वहां पे एग्रीकल्चर यील्ड्स में भी एविडेंस एंड रिसर्च हैज शोन कि 15-20% इजाफा हो जाता है, बिकॉज जहां पे बीज जाती हैं वो नेक्टर तो उठाती हैं बट पोलन भी फेंकती हैं, तो वहाँ ग्रीनरी फिर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा एनहांस होती है। बाहर के मुल्कों में तो आपको पैसे दिए जाते हैं कि आप अपनी बीज लेके आए हमारे फार्म पे ताकि हमारी यील्ड्स इंप्रूव हो। तो पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो हमारे दरख्तों पे ये पैसा लगा हुआ है। अब इस नेक्टर को किस तरह अपने हनी में कन्वर्ट करना और हनी को किस तरह कैश में कन्वर्ट करना है, वो नॉलेज और वो टेक्नोलॉजी वो शायद हमारे ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप देखें हमारी बेल्ट खाली जेलम से लेके गिलगित तक की बेल्ट, तो उसमें हमारे पास कोई 6 से 7 करोड़ कॉलोनीज का पोटेंशियल है। एक कॉलोनी होती है जिसमें जी एक क्वीन होती है बी की, और ये क्वीन के अराउंड उसके ये बी बच्चे होते हैं। ड्रोन जो होता है विच इज द मेल पार्ट डज नॉट लिव इन द कॉलोनी, वो ड्रोन्स की तरह बाहर फिर रहा होता है, वक्त उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ड्रोन्स का नाम भी आया है। बट ये जो बीज होती हैं ये जाती हैं 1-1 किलोमीटर के रेडियस से हनी उठाती हैं और वापस आ जाती हैं और अपनी ही हाइव में आती हैं। अगर आप 100 कॉलोनीज रख दें, 100 हाइव्स रख दें, वो किसी और हाइव में नहीं जाएंगी, वो अपनी ही हाइव में जाएंगी। सो दे आर वायरलेसली कनेक्टेड समहाउ एंड दे आर कम्युनिकेटिंग, खुदा का निजाम है। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें हमारा पोटेंशियल जो खाली जेलम से लेके गिलगित तक की बेल्ट को जो हमने मैप किया है, 7 करोड़ कॉलोनीज का पोटेंशियल है सर। और हमारे पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जेलम से गिलगित की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में अगर आप कॉलोनीज मैप करें तो रफली वो 4 लाख या 5 लाख भी नहीं बनती। वो 2 लाख 2.5 लाख कॉलोनीज जो होती हैं अफगान रेफ्यूजीज अपने साथ ले गए when they went on the other side because a lot of their livelihoods depend on that. तो अच्छा जी, अब मैं इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब एक बड़ी सिंपल बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, 100,000 हाइव्स लेके उसमें से अपनी हनी बनाए, मार्केट तक पहुंचाएं, बेचें, which is a good business. You can make a lot of money just doing that. But my objective was not that. My objective was कि अगर 9 करोड़ कॉलोनी का जेलम से लेके गिलगित तक का ये आपका पोटेंशियल है, आपने सिंध और बलूचिस्तान को भी कवर नहीं किया, तो हम क्या कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर सकते हैं जिसमें हम हर उस बच्चे को जो कि इस बिजनेस में आना चाहता है उसको हम ट्रेनिंग दें, स्किल्स दें, जिसके थ्रू वो अपनी हाइव्स को खुद मैनेज कर सकें, और ट्रेनिंग की एंड में हम उसको उसकी हाइव्स को उसको फाइनेंस करके उसके हाथ में दें विद बाय बैक एग्रीमेंट्स। तो वो ट्रेनिंग से निकले, हाइव्स को ले और जाके हनी प्रोडक्शन शुरू करे, और जब हनी प्रोड्यूस हो तो उसको बेचने की भी फिक्र ना करे, वो हमें एक अग्रीड प्राइस पे बेच दे। तो हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, जी बोले। दिस कैन बी एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, इसकी डिटेल में हम बाद में आते हैं। हल्ट प्राइस की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हल्ट प्राइस ने क्या किया, एक स्टूडेंट था विच पार्टिसिपेटेड इन हल्ट प्राइस 2013, और वो उसका आइडिया था एडिबल इंसेक्ट्स का, और उन्होंने एक पायलट रन किया, दे $1 मिलियन, और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एडिबल इंसेक्ट्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। और नाउ दे आर इन 7 years दे आर वर्थ ओवर $200 मिलियन, और उन्होंने पूरी एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है। और वो अफ्रीका में यही कर रहे हैं कि उन्होंने घरों में लोगों को थोड़े थोड़े इंसेक्ट्स पालने के लिए दिए हैं, दे ग्रो इंसेक्ट्स, और वो उनसे बाय बैक कर लेते हैं। सो दिस कैन बी ए ग्रेट मॉडल अगर इस पे आप कम्युनिटी ले कर दें इस तरह से, और पाकिस्तान में इसको स्केल कर दें। बिल्कुल। तो आज जो मैं चीज जो मैसेज देना चाहता हूं कि एक बड़ा सिंपल सा आइडिया है बजाहिर, बट इसमें अब मैं जो इनोवेशंस की बात करूंगा आपसे, किस लेवल पे हमने किस तरीके से क्या क्या चीजें इनोवेट की हैं, और इसकी अपॉर्चुनिटी किया थ्रू इनोवेशन। तो ये मैं की मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि बाजार एक हनी की बिजनेस जो है, बंदा कहता है यार इसमें क्या आप $1 बिलियन यूनिकॉर्न बना सकते हैं, बट इसमें आप बहुत आसानी से एक यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं। और वो मैं आज मेन फोकस मेरा वो इनोवेशंस की तरफ है। तो हमने क्या इनोवेशंस की, मैं उसकी आपसे बात थोड़ी सी करता हूँ। तो ये जब आप पूरी वैल्यू चेन देखते हैं जी, इस हनी की बिजनेस के अंदर 3 इसके मेन फंक्शन है। एक फंक्शन तो है आपकी जो हाइव प्रोडक्शन है, हाइव हैचरी जिसको कहा जाता है। तो पाकिस्तान में चूंकि हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक है, वी डोंट हैव इनफ कॉलोनीज, वी डोंट हैव इनफ हाइव्स।
भेड़ बकरियों को रेयर करना तो हमारे एक आम फार्मर के लिए बड़ा आसान है, बट क्वालिटी क्वीन रेयरिंग इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। उसमें आपको उनको इंक्यूबेट, जिस तरह आप इंक्यूबेटर में स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर रहे हैं, हमने क्वीन को इंक्यूबेट करना होता है एक छोटे से इंक्यूबेटर में, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें काफी ज्यादा साइंस आती है। दिस इज नॉट अ स्किल दैट इज वाइडली अवेलेबल। क्वीन के जो आप ड्रोन्स हैं उनको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और वहां पे फिर उनको ब्रीड करके उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जो कॉलोनीज है उसमें से भी आप अपनी जो फीमेल बीज हैं उनको आप लेके इंक्यूबेट करके आप और कॉलोनीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट at one point we need to create a hive hatchery because we don't have enough hives. So we have created that hive hatchery and we have the ability to produce about 2000 hives a year right now. But inshallah इसकी कैपेसिटी को हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। हमने दूसरी चीज क्या की थी यहाँ पे, एक तो ये हाइव हैचरी है, यहाँ पे हाइव प्रोडक्शन है, दूसरी साइड पे इसकी एक्सट्रैक्शन है। जब आप अपनी हनी प्रोड्यूस करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जिस स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे आपने हनी एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर आप वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपने सामने नहीं रखेंगे तो आप इसको मिडिल ईस्ट में नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आप यूरोप में नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये मेरे पिछले इदारे ने बहुत काम किया है, अफ्रीकन फार्मर्स को यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट किया और वो स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन पर हमने बहुत काम किया है। तो हमने एक ऐसी एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी बनाई है जो कि यूरोपियन कंप्लायंट सर्टिफिकेशन है और जिसके थ्रू जहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो हो रही है उसमें उसके थ्रू हम यूरोप में भी भेज सकेंगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके बीच में जो हाइव मैनेजमेंट का पार्ट है, एक आम बंदे के लिए बीज को मैनेज करना आसान काम नहीं है, वो तो बल्कि बीज से डर के भागते हैं, और जब हजारों और मिलियंस बीज आपके आसपास होंगे तो वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है। बट एनीवे वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो नैफ्टेक के थ्रू हम लेके आ रहे हैं लोगों तक, और वो हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करेंगे। बट ये 3 पिलर्स आप दिमाग में आप रख लीजिए, एक हाइव हैचरी है, एक हनी एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी है, और एक बीच में हाइव मैनेजमेंट है। एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि हाइव के अंदर हनी इज नॉट द ओनली बाय प्रोडक्ट, इसमें 4-5 और ऐसे बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट प्राइस इज ऑलमोस्ट 30 टाइम्स द प्राइस ऑफ हनी। हनी इटसेल्फ जी। एक कोई इंडिविजुअल कितने स्केल से शुरू कर सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है अपफ्रंट, और जनरली कहां तक वो उसको लेके जा सकता है, रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? मैं बिल्कुल ये पूरा मैं आपको पैकेज अभी बताऊंगा एंड में किस तरह शुरू होगा। तो हमने जो किया है इस वक्त, जो ट्रेनिंग के बाद हम दे रहे हैं 20-20 हाइव्स का पैकेज दे रहे हैं, और वो कामयाब जवान के थ्रू हम फाइनेंस करवा रहे हैं। तो कामयाब जवान के लिए तो आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है, बट जो हमें जो खबर मिली, स्टार्टअप पाकिस्तान ने हमें अप्रोच किया कि उन्होंने अपनी इंक्यूबेशन ट्रेनिंग्स कुछ रन की हैं और 1700 ऐसे बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग में, 2500 बच्चों को ट्रेन किया था जिनके पास आइडियाज नहीं है, तो दे वर आस्किंग फॉर आइडियाज। सो आई हैव गिवन देम अ बंच ऑफ आइडियाज एंड प्रोग्राम जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हनी इज वन ऑफ देम। तो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं, अब वो कुछ काम करना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या काम करना है, तो वो इस प्रोग्राम में बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं। 20 हाइव्स का हम पैकेज देते हैं, रफली 20,000 की एक हाइव है। उसमें स्मार्ट हाइव भी हमने डेवलप कर ली है विद वन ऑफ द लोकल यूनिवर्सिटीज। और स्मार्ट हाइव के अंदर ये है कि आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स के जब पैसे मैनेज करते हैं एक हाइव में, अपनी हाइव तो ठीक है आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी आपको काफी फायदा है स्मार्ट हाइव में कि आपको बार बार हाइव्स को विजिट नहीं करना पड़ता रिमोटली। पोर्टोहार में आपकी हाइव्स पड़ी हैं, आपको उठ के पोर्टोहार नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं कि जी कितनी हाइव ने कितनी हनी प्रोड्यूस कर ली है। उसका मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हनी। जर्मन स्टैंडर्ड इज 17% मॉइस्चर, 15 to 17%। तो अगर आप अर्ली हार्वेस्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हनी तो ज्यादा हो जाएगी, बट उसका मॉइस्चर सही नहीं होगा और वो आपसे कुछ खरीदेगा कोई नहीं। तो इसलिए हमने जो मॉइस्चर का सेंसर भी डाला है उसके अंदर, अपनी स्मार्ट हाइव के अंदर, और फिर ट्रैकिंग किस फौना एंड फ्लोरा में आप ये हनी कर रहे हैं, लोकेशन क्या है उसकी, और उसमें हमने नॉइज का भी सेंसर डाल दिया, क्योंकि वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू हनी इज द वास्प। डेमो होता है, वो जब अटैक करता है तो उसकी जो नॉइज है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं वहां पे कोई इशू तो नहीं है। एनीवे, सो दीज आर सम 20,000 का 20 हाइव्स का जो हमारा पैकेज है, उसके थ्रू हमने जो कैलकुलेशन की है, हमारी एक हाइव में रफली 30 से 40 kg हनी साल की प्रोड्यूस होती है। अगर आप बेरी का हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेरी का हनी इज सपोज टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट मेडिसिनल ग्रेड हनीज इन द वर्ल्ड। इट इज एज गुड एज मनुका हनी, जो न्यूजीलैंड का बड़ा मशहूर एक हनी है। सिडर हनी यमन का और न्यूजीलैंड का जो मनुका हनी है आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ हनी इन द वर्ल्ड। इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग हैं, और जो हनी के कॉन्सोर्स हैं उनको पता है सिडर हनी इज इवन बेटर देन मनुका। तो पाकिस्तान में जो बेरी हनी है, दैट्स बेसिकली सिडर हनी।
दुनिया को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पास ज्यादा पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस सीडर हनी देन यमन। और अब जो बेरी के दरख्त हमारे बिलियन सोनामी ट्रीज में प्लांट किए जा रहे हैं, ऑलिव के ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, उससे हमारा फॉना एंड फ्लोरा इंशाल्लाह और बहुत ज्यादा रिच होएगा फॉर हनी प्रोडक्शन। तो अच्छा, जो हमने कैलकुलेशन की, जी ये एक क्वेश्चन है कि जरक, मैंने क्वेश्चन शो कर दिया, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कि वो कह रहे हैं कि जरक पूछ रहे हैं, मैं ग्रीन हाउस ऑपरेटर और एकर्स में उनके पास ग्रीन हाउस है, वो कह रहे हैं कि यू मेंशनिंग मम्बल बीज। जी, मम्बल बी देखिए, दो किस्म की बीज होती है पाकिस्तान की लैंग्वेज में, एक जिसको हम मम्बल बी कह रहे हैं, एक बड़ी बी होती है और एक छोटी बी होती है। तो हम जिन बीज से इस वक्त एपीकल्चर कर रहे हैं, दीज आर नॉट आवर लोकल बीज। इंटरेस्टिंगली हमारी जो लोकल बी है वो थोड़ी सी कामचोर है। तो उसकी जो यील्ड्स है वो कम है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर जो एपीकल्चर होती है वो एक इन्होंने बीज, तो हमने डच भी इंपोर्ट की, यूरोपियन और बीज भी इंपोर्ट की, बट इटालियन बी वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो ज्यादातर जो आप देखते हैं यहाँ पे हाइव्स जो कर रहे हैं लोग, वो इटालियन बीज के थ्रू कर रहे हैं। और सिरियाना हमारी जो लोकल वैरायटी है वो भी मौजूद है, बट उसकी यील्ड थोड़ी कम है। तो जो हाइव्स हम लेके आ रहे हैं उसमें रफली आपकी आउटपुट निकलती है 30 से 40 केजी साल की पर हाइव। और 1 केजी हनी का अगर आप बेरी का हनी रिटेल में बेचते हैं तो वो आपको पड़ जाता है, वो आपको मिल जाता है रफली 4000 के करीब। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि बेरी का हनी जब पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है तो मिडल ईस्ट से व्यापारी आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द बेरी हनी इन पाकिस्तान दैट इज बीइंग प्रोड्यूस वो होलसेल में ही खरीद के ले जाते हैं। और होलसेल में ही आपको वो इतनी प्राइस दे देते हैं शायद जो आप पाकिस्तान में डिटेल में नहीं इस वक्त बना रहे। तो पाकिस्तान में बेरी का हनी जो है, इट्स अगर आपको नजर भी कहीं आता है तो वो यूजली इट्स नॉट 100% बेरी, क्योंकि आपको प्राइस जो होलसेल में मिल रही है बाय गिविंग दैट हनी टू मिडल ईस्ट एंड दुबई, वो आपको यहाँ पे रिटेल में भी नहीं मिल रही। तो इट वोंट मेक एन इकोनॉमिक सेंस फॉर एनीवन टू सेल इन द रिटेल फॉर अ लेसर प्राइस, जिसमें आपको बहुत सी बदले तय करने पड़ते हैं। एक प्रोडक्ट को रिटेल में बेचने के लिए उसमें बहुत कॉस्ट होती है, एफर्ट होता है। तो आपको होलसेल में उससे ज्यादा प्राइस मिल रही, क्यों बेचने की जरूरत है। एनीवे, अगर आप होलसेल में भी 4000 की बेच रहे हैं केजी और हाफ अ केजी आपको 2000 का पड़ रहा है, तो वो बहुत अच्छी प्राइस है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं लेट्स से 4000 की बेसिस के ऊपर आप 30 केजी हनी बना रहे हैं एक हाइव से, आपके पास 20 हाइव्स हैं, तो आपने 600 केजी हनी बना लिया एक साल के अंदर। 600 केजी को आपने अगर 4000 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 24 लाख रुपए बना लिए साल के। सो व्हाट्स माय इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इस पे अपफ्रंट क्या है और मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट क्या है? तो अभी 24 लाख तो मैंने 4000 की प्राइस हमने 24 लाख कैलकुलेट किया। अगर आप इसको 4 टाइम्स ना करें, आप इसको 1000 पे भी बेच दें हनी को, लोकल होलसेल मार्केट जो है हनी की यूजली 100 1000 1500 पे है, तो आप 1000 पे भी बेच दें तो आपने 6 लाख रुपए बना लिए साल के। नाउ व्हाट डज दैट मीन, दैट 6 लाख के ऊपर कैलकुलेशन। और ये 30 केजी 40 केजी हनी मैंने कंजर्वेटिव बताइए, आप 50 60 70 केजी हनी भी बना सकते हैं एक हाइव से साल का। तो अगर 6 लाख आप साल का बना रहा है एक बच्चा 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद, तो उसकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए। और अगर वो 12 लाख बना रहा है तो उसकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए। ये 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा बना रहा है। वो कामयाब जवान का लोन 6 महीने में पे ऑफ कर सकता है, एक्चुअली 3-4 महीने में पे ऑफ कर सकता है। 6 महीने के बाद वो अपनी हाइव्स को डबल भी कर सकता है। वो जब 40 हाइव्स पे पहुंचता है तो अपनी 1 लाख की इनकम को उसने डबल कर लिया और वो महीने की 2 लाख की इनकम बना रहा है। तो माय क्वेश्चन इज कि अपफ्रंट हाँ जी, अपफ्रंट मैं अपफ्रंट कॉस्ट पे आ रहा हूँ। देखिए, स्टूडेंट को अपफ्रंट कॉस्ट तो देने की जरूरत नहीं है ना, कामयाब जवान के लोन से फाइनेंस कर ले। बट अपफ्रंट कॉस्ट क्या है, आपकी 20 हाइव्स हैं, अगर एक हाइव की हमारी कॉस्ट 20,000 है तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, 20,000 को, 4 लाख हो गई आपकी अपफ्रंट कॉस्ट। ठीक है ना जी। तो बट ये कि ये खाली एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, ये घरों के लिए भी है। आप लेट्स से सर उबैद, मेरा क्वेश्चन है, देखिए क्या मैं एक हाइव से शुरू कर सकता हूँ 20,000 रुपए से? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर में रखें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। इसमें जो हनी बी में काम करते हैं ना, वो डिफरेंट लेवल्स पे लोग हैं। कुछ हॉबीइस्ट हैं घर में। अब जो नेफ्टा के चेयरमैन है जावेद साहब, उन्होंने 2 हाइव्स रखी हुई हैं, उनकी हॉबी है। तो बहुत से लोग हैं हॉबीइस्ट, 2 हनी के आपने हाइव रखी है, और वो 2 हाइव जो है, एक हाइव भी अगर आप घर में रखते हैं तो आपको वो प्योर हनी ला के दे रही है, और आपको इतनी हनी ला के दे रही है कि आपके घर की साल की सप्लाई आपकी पूरी हो गई,
और आप अपने दोस्तों अहबाबों को भी गिफ्ट कर सकते हैं हनी, एक हाइव से। तो हमारा जो प्रोग्राम है जब हम लॉन्च करेंगे तो उसमें खाली हमने ट्रेनिंग से लॉन्च करनी है, उसमें हमने हाउस होल्ड्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी प्रोग्राम रखा है कि अडॉप्ट अ हाइव, ओन अ हाइव। हर घर भी एक हाइव हमसे ओन करता है, और हम अगर 5% घरों तक भी पहुंच जाते हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान में, तो हमारी $1 बिलियन कंपनी बन गई है। जापान के बारे में मैं आपको बताऊं, जापान ने प्लान बनाया अगले 5 साल में किस तरह उन्होंने शुगर को रिप्लेस करना है हनी से। देखिए हनी, हमारे बच्चे इस वक्त शुगर, टॉफीज, कैंडीज, इन चीजों में लगे हुए हैं, कन्फेक्शनरीज में आप शुगर यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हनी इज अ सॉलिड रिप्लेसमेंट फॉर शुगर, इट्स वेरी हेल्दी। और ये कि आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इट्स एक्सपेंसिव, बट जब आप इसको मैसिव स्केल में प्रोड्यूस करते हैं तो ये अफोर्डेबिलिटी भी उसकी नीचे आती है और आम बंदा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। देखिए कुरान शरीफ में भी इसके बारे में लिखा है, इसमें शिफा है, खाली हमारे लिए नहीं, मुआशरे के लिए शिफा है। इसमें सोशल अपलिफ्ट है, इसमें आपकी एनवायरनमेंट के लिए अपलिफ्ट है, इसमें आपकी प्रॉफिट्स, ये ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क में मैंने जितनी भी वैल्यू चेन उसको स्टडी किया है, हनी से ज्यादा टोटल रिटर्न में फाइनेंशियल रिटर्न को भी कैलकुलेट कर रहे हैं और सोशल एनवायरमेंटल रिटर्न को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। देयर इज नो अदर वैल्यू चेन इन द वर्ल्ड दैट कैन गिव यू अ हायर रिटर्न देन हनी। तो उमर भाई, अच्छा, what's the lifespan of one hive? देखिए जी, वन हाइव जो है वो मरती नहीं है, वन हाइव मल्टीप्लाई होती है। तो उसमें जो क्वीन होती है वो बच्चे देते हैं, उसमें से और क्वींस निकलती हैं। तो एक जो साइंटिफिक हैचरी है, वो अगर आप 100 हाइव्स लेते हैं तो साल के बाद शायद वो 150 हाइव्स हो जाएं, फिर वो बढ़ती जाती हैं। हसन और इसमें जी हसन फिरोज पूछ रहे हैं हमें कि क्वालिटी ऑफ हनी कैसे चेक करेंगे और साउथ पंजाब में क्या ये बिजनेस किया जा सकता है? बिल्कुल। तो हम जब अब अभी देखिए इस वक्त जो हमारी जेलम से लेके गिलगित की बेल्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड बेल्ट है, उसमें बहुत ज्यादा लोग अपने डब्बे लेके बैठे होते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं पंजाब में, साउथ में लाइवलीहुड क्रिएट करना चाह रहे हैं सारों के लिए अलोंग दोस बेल्ट। तो हमने पूरा एक फौना एंड फ्लोरा को मैप करने का प्रोग्राम डिजाइन किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस थ्रू ड्रोन्स। तो ड्रोन्स पूरी दुनिया ने मैप कर लिया अपना फौना एंड फ्लोरा, पाकिस्तान ने अभी तक अपना फौना एंड फ्लोरा नहीं मैप किया। टू गाइड एंटरप्रेन्योर्स की किस जगह पे वो क्या चीज हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो स्टेप है, इसको फौना एंड फ्लोरा को हमने मैप करना है यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी अक्रॉस पाकिस्तान। उसमें आपकी यूनिवर्सिटी भी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है गालिबन। तो क्या ये ट्रेनिंग बिल्कुल प्रोग्राम हम लाहौर गैरिजन के साथ मिलके शुरू कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम? बिल्कुल आप कर सकते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, अभी आपने क्वालिटी की बात की, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। तो जो हनी आती है यहाँ पे, हमारी लैब की फैसिलिटीज पाकिस्तान में, अभी हमने ये मिनिस्टर फौज चौधरी के लिए सारा जो पीपीज और सैनिटाइजर का काम किया, वहां भी हमें इशू फेस आया कि हमारी लैब एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है और हमारे पास सारे टेस्ट मौजूद नहीं है। तो हनी के हवाले से भी हमारे पास इस वक्त जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ 2-3 लैब्स हैं मुल्क में जहाँ पे चीजें हो सकती हैं, बट हमें अपनी लैब की फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना है। तो गालिबन एज अ यूनिवर्सिटी, इफ यू हैव अ लैब, देन यू बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स टू कम एंड कनेक्ट विद यू, टू गेट ट्रेन विद यू। जो हनी प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां पे आके टेस्ट करे, आप उसको टेस्ट करके सर्टिफाई करके एक्सपोर्ट करें। तो वन कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लान फॉर योर यूनिवर्सिटी टू गेट इन्वॉल्व। अभी एरिड यूनिवर्सिटी में है काफी अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटी, वहां से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज को भी इस चीज में घुसने की जरूरत है मेरे ख्याल से। राइट। इसके अलावा चलिए ठीक है, दिस इज गुड। हम इस पे विल डिस्कस विद जन साहब कि हम इसको कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लाहौर गैरिजन के साथ शुरू कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस कोर्स की आपने बात की उमर भाई, वो अगर जी काइंडली उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि इन्वेस्टमेंट रेडीनेस कोर्स कौन लोग अटेंड कर सकते हैं, कितना लंबा प्रोग्राम है, एंड हाउ दे कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम, दिस कोर्स। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूं जी अपनी प्लीज। प्रेजेंटेशन की। सर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अगर आप कुछ कहना चाहें। जी वही मैं उसी पे मैं आ रहा हूं। सर आप अगर ये लाहौर गैरिजन के साथ हम मिलके अगर इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी बिल्कुल। सर आप म्यूट पे हैं। मैं म्यूट हो गया? नहीं, मैं म्यूट हुआ हुआ था उमर। एक्चुअली बात यह है कि ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं, आई हैव गॉन थ्रू द होल थिंग, मैं बड़े उसको इंटरेस्ट से सुन रहा था। इसमें हम तो हमेशा से पायनियर रहे हैं हर चीज़ में। जो हमारी सोर्स, ये जो आप कह रहे हैं ना, ड्रोन सर्वेलेंस एंड ड्रोन मैपिंग, जो है ड्रोन मैपिंग एंड ड्रोन, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रोन
robotics team here in LGU. पहली चीज तो वो है. सेकेंड चीज ये है कि जो जहाँ तक इसकी ट्रेनिंग का ताल्लुक है वो तो हम स्ट्रेट अवे नॉट ओनली फेस टू फेस F2F भी कर देंगे और उसके अलावा रिमोट भी दे देंगे, बिकॉज इस वक्त HEC ने हमारा जो ऑनलाइन ब्लेंडेड प्रोग्राम है उसको उन्होंने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया है बल्कि उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज को कहा है, 217 यूनिवर्सिटीज को, कि वो एमुलेट करें. तो हमारा ये जो आपका जितना भी कंटेंट है वी कैन जस्ट पुट इट ऑनलाइन और जरूरत भी नहीं होगी यहाँ आने की किसी को. इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी. तो वी कैन हेल्प आउट. ये इसका पूरा प्लान ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन हैव एन एक्सक्लूसिव मीटिंग ऑन दिस. दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल. और मैं ही मैयर करूंगा इस सेंस में. शायद उमर चूंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर है ये पैसों के हिसाब से करे. आई वुड ऑलवेज सी हाउ मेनी पीपल आर नाउ इन्वॉल्व सोशल ऑन एंटरप्राइज के तौर पे कि कितनी उस पे जॉब्स मिलती हैं. वी आर लुकिंग एट 1 मिलियन जॉब्स इन 1 ईयर. तो 1 मिलियन जॉब्स तो मुझे लगता है सिर्फ हनी में आ जाएंगी. तो अभी तो ये आइडियाज बाकी उमर ने शेयर ही नहीं किए, वो हम बाद में इनसे एक्सक्लूसिव शेयर करा देंगे. नहीं, आइडियाज बहुत है ऐसा. अभी आई एम आल्सो लीडिंग द प्रोजेक्ट फॉर HEC यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट विच इज अ $2.5 बिलियन प्रोजेक्ट जिसमें हमने सारी यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफॉर्म करना है और डिजिटली कनेक्ट करना है. उसमें ये आपका जो मॉडल है उसको हम आपसे थोड़ी डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे किस तरह हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं एट HEC लेवल. बट ये कमिंग बैक टू आपने सवाल पूछा इमरान रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट रेडीनेस. तो उसके हवाले से मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम का. Yes, why not, please? Or were you referring to the training of the apiculture program? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट रेडीनेस का जो आपका कोर्स है उसका. So बेसिकली हमारा जो कोर्स है ये हमने इनहेरिट किया था. लाइक आई सेड हमारे जो पार्टनर्स थे इन इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट जो हमने इम्प्लीमेंट किया 2011 से लेके 2014 तक, उसमें बिड नेटवर्क व्हिच इज अ डच ऑर्गेनाइजेशन. इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टार्टअप स्टॉक एक्सचेंज आउट ऑफ हॉलैंड. और इन लोगों को हम लेके गए थे अपने साथ एज अ पार्टनर इन ट्रेनिंग द एंटरप्रेन्योर्स इन अफ्रीका. इसके ये ओवरऑल 7 कोर्सेज हैं जी और 28 मॉड्यूल्स हैं. और ये मॉड्यूल्स जो हैं ये दे स्प्रेड ओवर रफली 7 topics which includes your business plan, financial plans, financial structuring, pitching, types of investors, investment process and building your team. और इसमें हम बहुत एक हैंड्स ऑन अप्रोच लेते हैं. हम सारे हर चीज का टेम्पलेट फ्रॉम कंपनी वैल्यूएशन टू डील स्ट्रक्चर्स. तो एक मैं इसमें आपको जरूर आज थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अपने प्रोग्राम का विच इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स. अब ज्यादातर बच्चे जब मार्केट में आते हैं पैसे रेज करने तो उनके दिमाग में 2 ही चीजें होती हैं. या तो इक्विटी से वो पैसे रेज करेंगे या फिर वो डेट से पैसे रेज करेंगे. बट ये चीज ज्यादा लोग शायद स्टार्टअप्स को नहीं पता होता कि इक्विटी और डेट से पैसे रेज करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. दुनिया में बहुत सी इनोवेशंस आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप पैसे रेज कर सकते हैं. और एक ऐसी इनोवेशन है जिसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल नोट या रॉयल्टी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट. अब आप इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स की एक ब्लेंडेड वर्जन को भी लेके आगे चल सकते हैं. बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ डील स्ट्रक्चरिंग का. अब टिपिकली जो प्रॉब्लम फेस होती है जब स्टार्टअप पैसे रेज करने जाती है, अभी उसने कुछ ज्यादा कैश फ्लो नहीं जनरेट किया होता और इन्वेस्टर्स जो हैं उसकी कंपनी के ऊपर कोई वैल्यूएशन नहीं प्लेस कर सकते. तो और अगर वो उसकी करंट कैश फ्लो की बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे तो उस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम आएगी. और अगर आज वैल्यूएशन हो जाती है उस कंपनी की तो कल जब वो सीड इन्वेस्टमेंट के लिए जाती है या वेंचर कैपिटल राउंड के लिए जाती है तो वो इन्वेस्टर्स की पिछली वैल्यूएशन को देखेगा और उसको डिस्काउंट करेगा. तो उसके लिए बहुत नुकसान है कि अगर वो आज वैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरे. तो हाउ कैन यू स्ट्रक्चर अ ट्रांजैक्शन वेयर यू आर एबल टू डिले द वैल्यूएशन व्हिच विल बेनिफिट द स्टार्टअप but at the same time create a win-win situation for the investor. अब इन्वेस्टर की साइड से जब आप चीज को देखना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टर जो है टिपिकली व्हेन ही इज इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप तो एक वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है क्योंकि हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होती और वो उस वक्त उसके पास इतना डेटा नहीं होता उस कंपनी के बारे में जिसकी बेसिस पे वो अपनी प्रोजेक्शन कर सके और एस्टिमेशन कर सके कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं सक्सेसफुल होगी. ही हैज टू पुट हिज बेट ऑन द फाउंडर. जितनी यंग कंपनी होती है उतनी आप क्वालिटेटिव असेसमेंट्स करते हैं फाउंडर्स पे, आप अपनी बेट्स प्लेस करते हैं. और जितनी पुरानी OGDC फॉर एग्जांपल अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि उसका फाउंडर कौन है,
उसके आप फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि वो बहुत पुरानी कंपनी हो चुकी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो रिटर्न्स बना रही है, उस ट्रैक रिकॉर्ड, उस डेटा की बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। बट एक स्टार्टअप के हवाले से हमारे पास वो डेटा मौजूद नहीं है, हमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स को वैल्यूएट करना है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इन्वेस्टर के लिए। तो हाउ कैन वी क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन फॉर इन्वेस्टर बाय क्रिएटिंग एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें इन्वेस्टर जो है इज एबल टू कवर हिज डाउनसाइड एंड इज आल्सो एबल टू रिकवर हिज अपसाइड। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल नोट एंड रॉयल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो आज अगर इमरान आपकी एक कंपनी है, आप $1 बिलियन रेज करने जाते हैं और आप मेरे पास आते हैं कि उमर मैंने रेज करने हैं और ये मेरे सामने इन्वेस्टर है, ही इज इंटरेस्टेड, बट हाउ कैन वी स्ट्रक्चर द डील? तो फुल स्क्रीन कर दें काइंडली प्रेजेंटेशन, फुल स्क्रीन कर दें, ओके, यस, थैंक यू। सो मैं थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं इसको थोड़ा स्किम करके आगे तक जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ एग्जैक्टली जो मैं चीज बात करना चाह रहा हूँ। सो एनीवे, सो जी, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, रॉजर दाऊद बयात पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कन्वर्टेबल नोट एंड आर दे ओनली प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? जी, अब इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें तो हमारे बैंक्स कन्वर्टेबल नोट नहीं ऑफर करते। अभी मैं आपको इन चीजों को बताऊंगा कहां से आगे कन्वर्टेबल नोट के थ्रू इन्वेस्टर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं इंशाल्लाह लंबे सेशन भी आपके साथ करूंगा सुबह इमरान, जिसमें हम आपको सारे बेसिक्स बता दें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के। तो आपके पास सोर्सेज ऑफ कैपिटल कहां से आप जा सकते हैं और वहां पे उन सोर्सेज के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप पैसे रेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट पहले ये मैं अपनी थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आखिरी 10 मिनट जरूर रखूंगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हम स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं इमरान जटाला के लिए, हमने हाइपोथेटिकल केस रखा कि इमरान जटाला ने $1 बिलियन रेज करने हैं। बहुत सी सिचुएशंस में आपने अपनी सारी प्लानिंग सही कर लिया, आपको पता आपको कितने पैसे रेज करने हैं, आपके सामने इन्वेस्टर भी मौजूद है, बट आप उस ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे टू क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन। तो टर्म शीट, जो हमारा टर्म शीट बिल्डर है, वो आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारता है पीएनआईबी में, जिसमें हम आपकी डील को स्ट्रक्चर करते हैं। अभी हम एक डील स्ट्रक्चर करेंगे, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो इमरान जटाला ने जो $1 मिलियन रेज करने एक इन्वेस्टर से, हमने माय रिकमेंडेशन टू इमरान इज कि वो इसको एक एज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट ऑफर करें अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, क्लब ऑफ इन्वेस्टर्स को जिनसे उनकी बात चल रही है। अब ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो है, इसकी टर्म्स क्या होंगी? ये टर्म शीट बिल्डर हमारा आपको इन प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर सकता है, सारी चीजें आपकी बिल्ड कर सकता है विदाउट यू नीडिंग टू वरी, बट वी विल आल्सो रन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू टू सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो ये जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, इसके 3 पहलू होंगे। एक तो पहलू होगा कि जी जो भी इन्वेस्टर है, ही वांट्स टू हैव सम इक्विटी पार्टिसिपेशन, तो आप उनको without getting into valuation you can give them 1% or 2% or whatever you can negotiate, you know, that's just a token equity, that's not against valuation। उसके अलावा आप उनसे कहते हैं, अगर आपने $1 मिलियन रेज करना है तो आप उनसे कहते हैं जी कि आपको वो एक 100,000 का अपफ्रंट चेक दें, उसके अगेंस्ट आप उनको एक सर्टेन टोकन इक्विटी दे देंगे, ठीक है ना जी। You're not going to get into the valuation exercise. The next tranche you can spread across some milestones, जिसको हम royalty finance कहते हैं। Royalty finance usually essentially is a percentage of revenues of sale of your product। तो बहुत से इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कहा जाता है जी कि हम ये रेवेन्यू बना सकते हैं अगर हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो इन्वेस्टर जब आपको 100,000 देता है तो इन्वेस्टर वांट्स टू नाउ मॉनिटर कि आप वो रेवेन्यू बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बट ही डजंट हैव टाइम टू रन अराउंड यू टू सी कि आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो रॉयल्टी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपने एक अग्रीमेंट किया है कि इन्वेस्टर के साथ अगर आपका रेवेन्यू बनता है तो उसकी 5% या 2% जो भी परसेंटेज सेल है आपने उसको दे देनी है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और फॉर अ सर्टेन डिफाइंड ज्योग्राफी। ये नहीं कि पूरे दुनिया में आपने उसको ये ब्लैंकेट ऑप्शन दे दिया, बट एक यू कैन डिमार्केट अ रीजन, इट कुड बी अ सिटी, इट कुड बी अ कंट्री, इट कुड बी एनीथिंग, you decide it, and it's a negotiation point between you and investor। And the third point is convertible note। convertible note में क्या होता है जी, तो आपने अगर 100,000 ले लिया थ्रू टोकन इक्विटी, बाकी आपने 400,000 ले लिया अगर रॉयल्टी फाइनेंस के थ्रू, तो 500,000 जो है फिर आप फाइनली उनसे रेज करें थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट वर्क्स लाइक अ लोन, an IOU, but it has also an option for the investor that the investor can either take cash from you when the cash is due, or he can convert that cash into equity but there are terms, you can't convert that cash into equity unless there's a valuation event।
तो आप डिफाइन करते हैं जी अगले 3 साल का आप नोट की होराइजन रखते हैं और आप कहते हैं कि जी 3 साल के अंदर कोई वैल्यूएशन इवेंट अगर होएगा तो जो भी वैल्यूएशन, जो भी मल्टीपल पे हमने एक वेंचर कैपिटल फंड को अपनी इन्वेस्टमेंट रेज की होगी उस वक्त हम आपको एक 30 या 50% डिस्काउंट पे आप उस मल्टीपल के 30 या 50% डिस्काउंट पे हम आपको कैश, आपके कैश को भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑप्शन विल बी विद द इन्वेस्टर. If the company is doing well, then it makes sense for the investor to convert his cash into equity. But if the company is not doing well, the investor may want to just collect his cash and walk away. So जब आप एक इंस्ट्रूमेंट को इन 3 स्ट्रक्चर्स में, लेयर्स में बनाते हैं और इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं, तो इन्वेस्टर को एक अपफ्रंट इक्विटी भी मिल गई, एक रनिंग कैश भी मिल गया अगेंस्ट द रेवेन्यू दैट यू आर अर्निंग, और जिसके थ्रू उनको पता चल रहा है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. और तीसरी आपकी जो ट्रांच है उसमें आपके इन्वेस्टर को आपको तो पैसे मिल गए जितने मिलने थे, और आपके इन्वेस्टर के पास, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए, ही हैज द ऑप्शन टू ईदर टेक इक्विटी इफ योर कंपनी इज डूइंग वेल और एग्जिट, कलेक्ट हिज कैश एंड वॉक अवे. तो इन्वेस्टर जब अपने रिस्क को इन 3 स्ट्रक्चर्स में स्प्रेड करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, और जो स्टार्टअप है दे आर एबल टू raise a lot of money without diluting yourself. If you were to raise all of that money upfront by raising equity, you would probably perhaps give up majority of your ownership and you would perhaps become an employee of that investor. तो आप भी अपनी वैल्यूएशन की जब डिले करते हैं, आपका भी फायदा है और इन्वेस्टर का भी फायदा है. इट्स अ क्लासिक केस ऑफ अ विन-विन सिचुएशन. सो लेकिन जी इसमें बात करने को बहुत है, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आज घंटे का स्लॉट था इसमें. आई वुड रिक्वेस्ट इमरान टू हैव मोर सेशंस. We have about 28 modules and 7 courses, so we can pick up any topic that is of need and interest to yourself. अब मैं जो आखिरी 7-8 मिनट रह गए हैं उसमें I'll open the floor for questions ताकि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं. सर आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें उस पर, फिर मैं क्वेश्चन. आई थिंक बेस्ट वुड बी कि बच्चे सवाल कर लें. मेरे क्वेश्चंस तो फिर वो इतने लंबे हो जाएंगे कि वो सेशन अलग कर लेंगे. आई थिंक दिस इज बेटर कि बच्चे अपने सवाल करें, और बच्चे बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं. अगर वो खत्म हो गए तो देन वी विल गो इन. राइट, ये एक क्वेश्चन है मुझे, इट्स कंज्यूमिंग स्क्रीन. तो मैं ये पूछ रहे हैं कि वो ऑलरेडी फार्मिंग पे यूज कर अपने ग्रीन हाउस पे जरा कह रहे हैं मैं यूज कर रहा हूँ 20 ऑलरेडी, और 2.4x उनकी इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन. दैट्स इट. वो कांटेक्ट पूछ रहे हैं जरा. एब्सोल्युटली सारी कांटेक्ट डिटेल्स, इनके सोशल मीडिया कांटेक्ट विल मेक इट पब्लिक, और आप बिल्कुल उमर भाई को रीच आउट कर सकते हैं. जी आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल थ्रू इमरान. आप इमरान के थ्रू जब भी मुझे रीच करना चाहते हैं या डायरेक्टली करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प. ये जो आपने अभी काम किया है बीज के हवाले से, अगर आप उसको स्केल करना चाहते हैं तो आई विल कनेक्ट यू विद ऑल द बी कीपर्स इन योर रीजन जो कि आपको सपोर्ट दे सकते हैं. आपको अगर हाइव चाहिए और बीज चाहिए तो उसमें भी आपको हम सपोर्ट दे सकते हैं. आप अगर हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी बम्बल बीज से, उसको आपने टेस्ट करना है तो PCSIR और बाकी जो हमारी लैब फैसिलिटीज हैं उधर भी हम आपको कनेक्ट कर देंगे, आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं. अगर आपको पैकेजिंग और डिलीवरी की सर्विस चाहिए तो हमारी ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जो कि घर होम टू होम आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं. वी हैव वन स्टार्टअप जो कि फार्म्स को कनेक्ट कर रहे हैं घरों से, और ऑलरेडी उन्होंने इस्लामाबाद में मंडियों को कनेक्ट कर दिया घर से, तो आप अपने घर में हर चीज ऑर्डर कर सकते हैं. बल्कि अभी ये जो हनी के हमारे एक्सपर्ट है, नंबर 1 एक्सपर्ट है पाकिस्तान, उनका फोन भी आ रहा है. सो feel free to reach out and we'll be able to help you with whatever you want. Thank you very much, Umar bhai. I would love to have one as a hobby for my home as well. नहीं, बिल्कुल आप करें. हुनरमंद जवान के अंदर आज हमारी प्रेजेंटेशन है. चेयरमैन जावेद हसन जो है, ही इज अ शेयर होल्डर इन माय बिजनेस बाय द वे. तो वो भी बड़े इंटरेस्टेड है कि हुनरमंद जवान के अंदर भी आप ऐसी स्किल्स भी दें जिससे हमारे और मतलब इसमें आप देखें ना, जो इनकम आप बना रहे हैं, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1 लाख अगर है, 80,000 से लेके 1 लाख है, तो मैं समझता हूँ बहुत सी हमारी जो ब्लू चिप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे लूज देयर वर्कफोर्स फॉर दिस बिजनेस because they are not able to pay these kinds of salaries after 4-year college degrees. Umar, on the lighter side, actually I don't need honey because I already have a honey in my house. And as far as religion is concerned, I can go for 4 honeys. So let's convert the hives into those honeys. So मुझे बड़ा आपकी सोच वहीं पे जाए. 4 at one time. तो वो change कर सकते हैं. But my point is, Umar, it was a wonderful, I think, experience. The time was too less, but actually this has given us a window of opportunity. इससे पहले हमने बड़े practical 3-4 और speakers बुलाए थे,
जिनमें से शायद आपने जोया को सुना हो, who wants to start up with the lower end of multiple jobs, diversified jobs. ये specific है with Honey, but you said you have plenty of other ideas जिनको किया जा सकता है. We are on it. We are actually going to raise about 150 companies within LGU, but now with listening to you, I believe we have to change this figure to some multiple of 10 or 100. So maybe 1,500 companies we might be raising on that. We will give you our plan and discuss with you what will be the way forward for win-win situation. जी, अब लास्ट 5 मिनट रह गए हैं. अब सवाल अगर और नहीं है तो मैं एक लास्ट चीज आपको जरूर और बताऊंगा इस हनी के बारे में, जो अभी तक बेस्ट चीज मैंने आपको नहीं बताई. तो इस वक्त हमारा जो इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, दे आर कीपिंग देयर मनी इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स, रियल एस्टेट, कार्स, ज्वेलरी, व्हाटएवर. अगर आप हमारी स्टॉक मार्केट को भी देखें तो उसमें बहुत मिनिमल लिमिटेड पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर्स की. They don't have alternative asset classes, investment asset classes to invest in. और ज़्यादातर लोग अपने बैंक अकाउंट्स में भी पैसे रखते हैं तो करंट अकाउंट में रखते हैं इस्लामिक शरिया रीजंस की वजह से, जो भी उनके थिंकिंग है. हमारी एक रिलक्टेंस है टू अर्न इंटरेस्ट ऑन आवर कैश. तो हमने एक एसेट क्लास ऐसी बनाई है एक वन ऑफ द मेजर बैंक्स के साथ मिलके, जिसको हम कहते हैं हाइव मैनेजमेंट कंपनी. जिस तरह एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है तो उसमें एक इन्वेस्टर, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर हमारी हाइव्स में इन्वेस्ट कर सकता है और उसको हम दे रहे हैं रिटर्न्स व्हिच आर almost twice the returns that an investor is getting currently. Actually 3 times returns investors are getting on the Pakistan investment bonds. हमारी investment bonds की भी yields गई हैं, and almost about 1.8 times the returns that you can get by investing in stock market over a long period of time. छोटे पीरियड के ऊपर तो आप ऊपर नीचे जाते हैं स्टॉक मार्केट में. अगर आप 10 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो उस पर रिटर्न आप बनाते हैं तो उसका भी एक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का मल्टीपल का रिटर्न हम ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को. तो इसमें हमारा जो पार्टनर है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, व्हिच प्रोवाइड्स द बैक एंड प्लेटफॉर्म टू ऑल द म्यूचुअल फंड्स एंड मुदारबास इन पाकिस्तान. हम इन्वेस्टर के पैसों को हाथ नहीं लगाते हैं. इन्वेस्टर के पैसे अपने थर्ड पार्टी उनके कस्टोडियल बैंक्स में होते हैं और उसके थ्रू वो हमारे शेयर्स में हमारे हाइव्स में इन्वेस्ट करते हैं. हर हाइव जो है उसका एक डिजिटल ट्विन जो है सीटीसी अपने साथ रखता है ताकि उसको ट्रैक कर सकें थ्रू द रिमोट सेंसर्स दैट वी हैव. दे एबल टू डू थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, कितनी हनी प्रोड्यूस हुई, कितनी बिकी, कितना रेवेन्यू आया. उस रेवेन्यू का हिस्सा जो हमारे अकाउंट में जाना है वो हमारे अकाउंट में डाल देते हैं और जो इन्वेस्टर का हिस्सा है वो इन्वेस्टर के अकाउंट में चला जाता है. तो ये थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है. सीटीसी इज अ गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोली, तो इसमें इन्वेस्टर को पूरा कंफर्ट भी है. और हम समझते हैं ये जो बिजनेस है हनी की, इसमें हमें किसी से पैसे रेज करने की भी जरूरत नहीं है. इसमें पैसे एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स आर डाइंग टू इन्वेस्ट मनी इन एसेट क्लासेस व्हिच आर शरिया कंप्लायंट, व्हिच आर ऑफरिंग देम यील्ड्स, but they don't have options, which is why they're keeping their money in unproductive assets. इसकी वजह से हमने एक ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हाइव मैनेजमेंट कंपनी रोल आउट की है. और इसमें अगर लेट्स से अगर आप सर आते हैं फैसल बैंक के थ्रू हमारे 50 हाइव्स में इन्वेस्ट करते हैं तो you can make significant returns, more returns than you can make in any other asset class in the country at the moment. And at the same time, these returns are totally uncorrelated. आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाए, यहाँ पे रिटर्न्स जो है उनका उससे कोई लिंकेज नहीं है. यहाँ पे जो रिटर्न्स आप बना रहे हैं उसका लिंकेज है कितनी आप हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो किस प्राइस पे बिक रही है. और तो ये रिस्क जो है टोटली अनकोरिलेटेड है. तो इन्वेस्टर्स के लिए भी हमने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की है. हम इन्वेस्टर्स से पैसे नहीं मांगने जा रहे हैं. हम इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. हमारे पास इतनी हाइव्स नहीं है इस वक्त, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है कि हम उन इन्वेस्टर्स को मैनेज कर सकें. तो ये एक ही बिजनेस है, इसके अंदर हम अगर शुरू करते हैं और यही वैल्यू चेन अप्रोच मैं समझता हूँ बहुत सी वैल्यू चेन में हम ले सकते हैं. और एग्री एंड नॉन एग्री वैल्यू चेन में अगर हम वैल्यू चेन अप्रोच लें, एक लार्जर व्यू लें, तो हम जॉब्स के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो वो टारगेट बहुत अचीवेबल है, इजीली अचीवेबल है. तो ऑन दैट नोट आई विल पॉज एंड थैंक इस टाइम पर ना जी आई वुड लाइक टू जस्ट कम इन. एग्री हैज बीन आवर एक्सट्रीम फोकस. I think ये एक हमारा हेड स्टार्ट मिल सकता है हनी का, बट वी वर ऑल्सो लुकिंग एट, मतलब एक बड़े बड़े आप उसको स्टूपिड आइडिया कह लें या व्हाटएवर, हमने यहाँ तक सोचा कि ये आटे का जो बुरान हुआ था इसमें वाई डोंट वी हैव अ स्मॉल आटा मैन्युफैक्चर वो प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जो आजकल मिल जाती हैं आपको. लेट से 100 एकर्स के ऊपर एक आप यूनिट लगा लें और वो जो लोकल जितने भी हैं वो सीधा ही आई मीन उनकी हील्ड भी देखें, वो बजाय इसके कि सिर्फ जो है वो गंदम बेचें, वो एक्चुअली आटा बेचेंगे. तो आटा बेचने में ये है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है.
और सबसे बड़ी बात यह है कि डोंट हैव टू गो टू एन आरती, वो जो मिडल मैन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वी वांटेड टू एक्चुअली, तो एग्री में हमने बहुत कुछ किया है। फिश में आया, फिश की उसकी जो एंजाइम्स क्रिएट मतलब प्रोड्यूस करने की, उसके वेस्ट से प्रोड्यूस करने की, यहाँ तक कि हमने फ्रोजन फूड के ऊपर गए, फ्रोजन बीफ के ऊपर हमने उसकी बड़ी रिसर्च की हुई है। आई मीन इस टाइप की चीजें हमने बहुत की, लेकिन ये जो उसकी फाइनेंशियल साइड है, या मतलब अब मेरे पास इस वक्त 60 डॉक्टर्स हैं, पीएचडी डॉक्टर्स, और उनमें से तकरीबन 12 जो हैं दे आर इन दी बायोटेक्नोलॉजी। आई मीन उनको हमने एग्रीकल्चर की साइड पे जरा दिया फोकस, लेकिन अभी तक वो उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। माइंडसेट फ्रॉम टीचिंग टू बिजनेस, ये माइंडसेट हम बेसिकली, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा इमरान का और हमारा मिलके, ये प्लेटफॉर्म मैंने वो चेंज करना है कि दे शुड स्टार्ट रेजिंग कंपनीज 1 2 3। आई मीन आप अपनी एग्जांपल ले लें, मतलब फ्रॉम टीचिंग यू हैव गॉन इनटू दिस कंपनी रेजिंग एस्पेक्ट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने होती है और कामयाबी नजर आती है, तो व्हाई नॉट, आई थिंक पीपल वुड स्टार्ट जंपिंग इन। तो ये स्टार्ट है हमारा इंशाल्लाह। आई थिंक वी हैव कॉन्सोनेंस ऑफ thinking, we have consonance of ideas. Inshallah we'll have a bit more of interaction, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। Thank you very much. It was a wonderful experience to have been listening to you. A very absolute clarity of mind and focused at this age. That's great. Imran, thank you so much, sir. Thank you very much, Umar bhai. This is just the beginning of this new collaboration and partnership. और अभी तो बहुत कुछ मिलके करना है। Inshallah ji, looking forward to it. Thank you very much. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you ji. Khuda Hafiz. Allah Hafiz, and we'll be back after a short break. Allah Hafiz.